شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میری شادی حماد کے ساتھ ہوئی۔ حماد ایک بہت ہی اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور میری ہر ضرورت کا خیال بھی رکھتے تھے۔ حماد سے چھوٹے ان کے 2 بھائی تھے۔ حماد کی امی یعنی میری ساس بہت ہی نیک اور اچھی انسان تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتی تھی۔ اگر صبح کے وقت میں سو رہی ہوتی تو وہ مجھے نہیں اٹھاتی تھی، بلکہ خود حماد کے لیے ناشتہ بنا دیتی تھی۔ مجھے اپنی ساس کی عادات بہت پسند تھیں، اس لیے میں دل سے ان کا احترام کرتی تھی۔ ایک دن میرے ابو کا فون آیا کہ تمہاری امی کی طبیعت کافی خراب ہے، وہ تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں نے حماد کو فون کیا کہ امی کی طبیعت خراب ہے، میں نے ان سے ملنے جانا ہے۔ حماد فوراً چھٹی لے کر آ گئے۔ ہم امی کے گھر پہنچے تو امی کی طبیعت کافی خراب لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد حماد نماز پڑھنے چلے گئے۔ جب وہ واپس آئے تو میں نے ان سے کہا کہ امی نے مجھے یہ باکس دیا ہے، میں نے اسے گھر لے کر جانا ہے۔ اس وقت تو حماد شاید امی کی وجہ سے کچھ نہ بولے اور انہوں نے باکس کے بارے میں کچھ نہ پوچھا اور ہم لوگ گھر آ گئے۔ گھر آتے ہی حماد نے پوچھا کہ اس باکس میں کیا ہے؟ میں نے کہا میری بچپن کی کچھ یادیں ہیں اور کچھ ضروری چیزیں امی نے دی ہیں۔ یہ سن کر حماد چپ ہو گئے اور رات کو کھانا کھا کر سب سو گئے۔ رات کے وقت حماد کی اچانک آنکھ کھلی۔ حماد نے دیکھا کہ حور بستر پر نہیں ہے۔ حماد نے سوچا کہ واش روم میں ہوگی، لیکن جب کافی دیر ہو گئی اور حور نہ آئی تو حماد نے آہستہ سے آواز دی، حور تم واش روم میں ہو؟ لیکن آگے سے کوئی جواب نہ آیا۔ تو حماد نے پہلے واش روم میں دیکھا، پھر اس کے بعد وہ باہر چلے گئے۔ اس نے دیکھا کہ حور نے باکس کھولا ہوا ہے اور وہ اس کے پاس کھڑی ہے۔ اتنے میں حور نے بھی حماد کو اپنی طرف آتے دیکھ کر فوراً باکس کو بند کر دیا۔ حماد نے پاس پہنچ کر کہا کہ اس وقت تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ حور نے کہا میں پانی پینے آئی تھی، بس یوں ہی اپنی پرانی چیزیں دیکھنے کو دل کیا تو دیکھنے لگ گئی۔ حماد نے کہا یہ کون سا وقت ہے چیزیں دیکھنے کا، صبح دیکھ لینا، اب آ کر سو جاؤ۔ پھر چپ چاپ آ کر حور کمرے میں لیٹ گئی۔ نیند تو اسے آ ہی نہیں رہی تھی، وہ تو بس باکس کی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ صبح حماد آفس چلا گیا۔ جب وہ شام کو آفس سے واپس آیا تو اس نے اپنے کمرے میں باکس کو دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے چلا کر حور کو آواز دی، حور جلدی ادھر آؤ۔ حور بھاگتی ہوئی آئی اور کہا کیا ہوا حماد؟ حماد نے کہا کہ یہ باکس یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ حور نے کہا کہ باکس کو کمرے میں نہ رکھوں تو پھر کہاں رکھوں؟ حماد نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارا کمرہ پہلے ہی چھوٹا ہے، اوپر سے تم نے اتنا بڑا باکس لا کر رکھ دیا ہے، اب تو کمرے میں گزرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ حماد نے غصے سے کہا کہ اس باکس کو
इस कमरे से ले जाओ, इसको देखकर मेरा दम घुटता है। इन दोनों की आवाज़ें सुनकर हमाद की अम्मी कमरे में दाखिल हुई और कहने लगी कि क्या शोर मचाया हुआ है। हमाद ने कहा कि अम्मी इस बॉक्स को इस कमरे से ले जाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हमाद की अम्मी ने कहा तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। हमाद की अम्मी ने हूर से कहा कि इस बॉक्स को स्टोर रूम में ले जाओ। हूर ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा स्टोर में कोई और जगह नहीं है। हमाद की अम्मी समझ गई कि हूर बॉक्स को स्टोर में नहीं रखना चाहती है। फिर अम्मी ने काफ़ी सोचने के बाद हूर से कहा कि इस बॉक्स को उस कमरे में ले चलते हैं जिसमें मैंने चीनी और गंदम की बोरियां रखी हुई हैं। ये सुनकर हूर खुश हो गई। रात को जब हमाद अपने कमरे में सोने आया तो हूर ने उसे दूध का गिलास लाकर दिया और कमरे से चली गई। हमाद ने सोचा कि किचन में काम होगा, थोड़ी देर में आ जाएगी। वो इंतज़ार करता रहा लेकिन हूर ना आई। इसी दौरान हमाद को नींद आ गई। आधी रात को हमाद की आंख खुली तो उसने देखा कि हूर बिस्तर पर नहीं है। उसने वॉशरूम में देखा, वहां भी हूर नहीं थी। फिर वो बाहर गया, हूर नजर न आई तो वो बॉक्स वाले रूम में गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि हूर बॉक्स के साथ चारपाई बिछाकर सोई हुई थी। उस वक्त हमाद ने हूर को जगाना मुनासिब ना समझा और वो रूम में आकर सो गया। सुबह हमाद ने हूर से कहा कि ये क्या पागलपन है। हूर ने कहा क्या मतलब, मैं समझी नहीं। हमाद ने कहा कि तुम बॉक्स वाले रूम में क्यों सोई थी। हूर ने कहा कि आपने बॉक्स को कमरे में रहने नहीं दिया। जब आपने मेरे बॉक्स को कमरे से निकाल दिया तो फिर मेरे लिए भी रूम में जगह नहीं होगी। यही सोचकर मैं बॉक्स वाले रूम में सो गई थी कि मेरी वजह से आप कहीं डिस्टर्ब ना हो जाएं। हमाद ने कहा क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो, वो बॉक्स था, तुम बीवी हो मेरी। हूर ने कहा कि अगर मेरी चीजें रूम में नहीं रह सकती तो मुझे भी ऐसे रूम में नहीं रहना। हमाद गुस्से से पागल हो रहा था और वो जल्दी से ऑफिस चला गया क्योंकि वो ऑफिस से लेट हो रहा था। जब शाम को हमाद वापस आया तो उसने अपनी अम्मी को सारी बात बताई कि रात को हूर बॉक्स वाले रूम में सोई थी। हमाद ने कहा मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस बॉक्स में ऐसा क्या है जो हूर इस तरह कर रही है। हमाद की अम्मी ने कहा कि आज सारा दिन हूर उसी बॉक्स वाले कमरे में रही, सिर्फ 2 या 3 बार ही बाहर आई, वो भी सिर्फ खाना पकाने के लिए, और अपना खाना भी वो बॉक्स वाले कमरे में ले गई और वहीं बैठकर खाया। हमाद की अम्मी ने कहा मैं तो हूर के लिए बहुत परेशान हूँ कि कहीं कोई साया वगैरह का चक्कर तो नहीं। हमाद की अम्मी ने कहा मैं हूर की अम्मी से बात करती हूँ। और अगले ही दिन इत्तला मिली कि हूर की अम्मी का इंतकाल हो गया है। ये खबर सुनकर तो हूर जैसे पागल ही हो गई थी। अम्मी, हूर और मैं हूर के घर पहुँचे तो वहाँ जाकर कुछ देर के बाद मुझे ख्याल आया कि हूर तो यहाँ पर है, मुझे घर जाकर देखना चाहिए कि इस बॉक्स के अंदर क्या है। ये सोचकर मैं वहाँ से अपने घर आया और बॉक्स वाले रूम में गया। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि हूर ने बॉक्स को एक बड़ा सा ताला लगाया हुआ था। मैंने इधर उधर चाबी ढूंढी, हर जगह तलाश की, लेकिन चाबी ना मिली। मैं मायूस होकर चारपाई पर बैठ गया। एकदम मेरी नजर हूर के दुपट्टे पर पड़ी।
उसके पल्लू के साथ चाबी बंधी हुई थी। हूर ने जब अपनी अम्मी के वफात की खबर सुनी तो उसने बेख्याली में अपना दुपट्टा वहीं उतार कर रख दिया और चादर ओढ़कर चली गई। मैंने फौरन चाबी पकड़ी और ताला खोला। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मैंने जो बॉक्स के अंदर देखा तो उसे देखकर मेरा दिल लर्ज गया। मैं वहां से हूर के घर आया। उसकी अम्मी की तदफीन के बाद मैं, अम्मी और हूर घर आए। घर आकर मैंने हूर से कहा कि मुझे सब पता चल गया है कि बॉक्स के अंदर क्या है। ये सुनकर हूर रोने लगी। मैंने कहा, हूर रो क्यों रही हो? जो सच है मुझे बताओ, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। हूर ने बताया कि मेरे अब्बू को बेटियों से सख्त नफरत थी। उन्होंने पहले ही दिन अम्मी से कह दिया था कि मुझे सिर्फ बेटे पसंद हैं। फिर अल्लाह ने पहले 2 बेटे दिए। अब्बू बेटों की वलादत पर बहुत खुश थे। अब्बू ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। लेकिन तीसरी दफा बेटी पैदा हुई तो अम्मी ने डरते डरते जब अब्बू को बताया कि बेटी पैदा हुई है तो अब्बू ये सुनकर बहुत गुस्से में आए। अब्बू ने अम्मी से कहा कि तुम्हारी बेटी कभी मेरे सामने ना आए और ना ही तुम कभी उसे मेरे सामने लेकर आना। फिर जब अम्मी चौथी बार उम्मीद से हुई तो अब्बा ने अम्मी से कहा कि अगर बेटी हुई तो मैं उसे भी मार डालूंगा और तुम्हें भी। ये सुनकर अम्मी बहुत डर गई थी। अब्बा ने कहा, मुझे सिर्फ बेटे चाहिए। जब दाई अम्मा ने अम्मी को बताया कि बेटी हुई है तो अम्मी ने दाई अम्मा को कहा कि मेरे शोहर को जाकर बताओ कि मुर्दा बेटी पैदा हुई है। दाई अम्मा ने कहा कि मैं झूठ क्यों बोलूं, लेकिन जब अम्मी ने सारी हकीकत दाई अम्मा को बताई तो उसे अम्मी पर बहुत रहम आया और उसने जाकर अब्बा को बताया। अब्बा ने पैसे निकाल कर दाई अम्मा को दिए और कहा कि कहीं दफन कर दो इस बच्ची को। फिर अम्मी ने दाई अम्मा से कहा कि वो चंद दिन बच्ची को अपने पास रख ले। वो मान गई। फिर अम्मी ने फ़ोन करके नानी जान को बुलवाया और सारी बात बताई। नानी मेरी छोटी बहन निदा को लेकर अपने घर चली गई। फिर हूर ने हमाद को बताया कि अब नानी अम्मा फौत हो गई हैं। तो अम्मी नानी के घर गई और सोच रही थी कि निदा का क्या करें। नानी का बचा हुआ सामान और कुछ चीज़ें थीं जो अम्मी अपने साथ लाई थी और इस सामान में नानी का ये बॉक्स भी था। अम्मी ने निदा को इस बॉक्स में बिठा दिया और इस तरह निदा घर में आ गई। अम्मी दिन रात निदा की हिफाजत करती थी। अब्बू जब घर आते तो निदा बॉक्स में वापस चली जाती थी। लेकिन उस दिन अम्मी ने मुझसे कहा कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब साथ छोड़ दे। अम्मी ने मेरी बहुत मिन्नतें की कि मैं निदा को अपने घर ले जाऊं और इस तरह मैं उसे बॉक्स में अपने घर ले आई। हूर ने कहा, प्लीज़ हमाद मुझे माफ़ कर दो, मुझसे नाराज़ मत होना। हमाद ने कहा, पगली तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, मुझसे क्यों छुपाई, मुझ पर भरोसा नहीं था। हूर ने कहा कि मुझे डर था कि कहीं मेरे अब्बू की तरह आपको भी बेटे पसंद हो। हमाद ने कहा, तुम्हें पता है कि मुझे बेटों से ज्यादा बेटियां पसंद हैं। ये सुनकर हूर की आंखों में एक चमक आ गई। हमाद की अम्मी ने हूर और हमाद की सारी बातें सुन ली थी। वो हूर के पास आई और कहा कि तुमने ये बात हमसे छुपा कर निदा बेटी के साथ बहुत ज्यादती की है। हूर ने कहा, मुझे माफ कर दें, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हमाद की अम्मी ने कहा, जल्दी से जाकर निदा को लाओ। निदा आई तो हमाद की अम्मी ने उसे अपने गले से लगा लिया और कहा, आज से मेरी 2 बेटियां हैं, एक हूर और दूसरी निदा। अब इस बात को पूरे 10 साल गुजर चुके हैं।
हमाद ने निदा की शादी अपने छोटे भाई यासर से करवा दी। अब हम दोनों बहनें हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। शुक्रिया।